Hello, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number first of the chapter Amines in Chemistry of class 12th. So, as you all are aware of the fact that the most basic or the simplest class of the organic compounds are the hydrocarbons, and the hydrocarbons are generally divided into two types, uh, as aliphatic and the cyclic hydrocarbons. We are not going into the detail of that, but I just want you to know that when we replace the hydrogen of these hydrocarbons, so different kinds of the hydrocarbons, be it the aromatic or the simple aliphatic chains, we get the different kinds of organic compounds. So some of them I have already made sessions on before also. So if you want to know the details of those organic compounds, I have already prepared the lectures on the haloalkanes and the haloarenes. And I have also covered alcohols, phenols, and ethers, aldehydes, ketones, and carboxylic acids in my previous lectures. So for details, you can view them. Now, coming to amines. So amines are also one of the most important class of the organic compounds, talking in the organic chemistry. So So today we'll basically discuss some of the sources, or you can say, and the several examples of the amines, be it the natural sources or the synthetic sources also. Some of the uses of amines are also in the case of drugs, like in the case of medicines and all, whatever we take. And some of them, they are also present in our body naturally. So we will discuss them in detail today. And then we will move on to the structure of amines. And like a structure matlab, we will talk about the geometry, or the jitne bhi pairs of electrons hote hain, the valence electrons which are present on the nitrogen atom, how are they participating in the bond formation and all. Then the geometry and the hybridization of the orbitals, and the bond angles. So we'll discuss everything of them. Then we'll move on to the classification of amines. And then the most important thing is the nomenclature, because it's not the nomenclature of all the organic compounds is important, not only in the case when we are talking about that particular organic compound, or the organic the class of organic compounds, but because as I have already discussed कि जो पहले भी compounds इससे भी पहले जो compounds पढ़े पढ़े हैं, जैसे कि halo alkenes हो गए या alcohols हो गए, aldehydes हो गए, उसके भी preparation में और जो उनके रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसमें भी अमीन्स कहीं न कहीं पे यूज़ हुए हैं। ठीक है? तो आइदर इन द केस ऑफ प्रिपरेशन में कहीं यूज़ हुए हैं, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसमें कि अमीन्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है? सो एवरीथिंग इज़ इंटररिलेटेड। तो वहाँ पे भी नोमेनक्लेचर का बहुत यूज़ होता है। सो दैट इज़ व्हाई नोमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट द कॉमन नेम सिस्टम और द IUPAC नेम सिस्टम। So now we move on to uh, these topics. Okay? So first, as I told you, we will discuss the sources. So talking about the natural sources. In nature में where all you can get these amines. So in nature they generally occur among the, like, in the form of proteins, vitamins, alkaloids, and hormones. Proteins, vitamins, alkaloids, and hormones. ठीक है, तो ये उनका नेचुरल फॉर्म है। ठीक है, ये अमीन जो है ये नेचुरली अकर करते हैं, ये सिंथेटिक नहीं है, इनको सिंथेसाइज नहीं किया गया है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल ओवर हियर। देन वी हैव सेवरल सिंथेटिक एग्जांपल्स आल्सो, और द सिंथेटिक सोर्सेज यू कैन से। सिंथेटिक तो अभी लाइक जहाँ पे इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं और जो अदर केमिकल रिएक्शंस हैं, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल बाद में इन द चैप्टर, बट these are some basic examples. So synthetic sources में you have polymers, dyes, and drugs. Polymers, I don't know if you are aware of these, that polymers, they are the very large molecular weight compounds which are made up of very small monomers. Monomers बहुत छोटे units होते हैं जिनका molecular weight कम होता है, and
Then these monomers they join even the number of these monomers in a polymeric chain, it can be greater than 1,000, also greater than 5,000. So um, so these are such large molecular weight compounds. Now talking about the how are they present in our body. So basically the biologically active compounds, namely adrenaline and ephedrine, they both contain the secondary amino group. So they are present in our body naturally, and they are basically related with the blood pressure. They are used to increase the blood pressure of the person. Okay, so I'm just writing the names. These are not that important. मतलब exam point of view से इतने important नहीं है. But I mean, you should know. You must be aware of certain things that are already there around you. नहीं तो फिर आपके पढ़ने का क्या पर्पस हुआ? ठीक है, तो ये जनरल बेसिक नॉलेज वाली चीजें हैं. एग्जाम्स वगैरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी हैव adrenaline. It is a hormone. I'm sure that you must have heard about this name in the biology classes. And the second one that is important is ephedrine. ठीक है. Then there is a synthetic amino compound which is known as novocaine. We have novocaine. This is also an amino compound. It is synthetic. ठीक है, तो उसको synthesize किया जाता है and that is used as an anesthetic in the dentistry line. ठीक है, so you have several kind of anesthetics that are used in different lines of medical. So this is used in dentistry. Then you have Benadryl. It is also a drug that contains the tertiary amino group. ठीक है. Then you have quaternary ammonium salts. They are also used as surfactants. And several kinds of diazonium salts are also there. They are used as intermediates in the preparation of a variety of organic compounds, or basically in the aromatic compounds. Diazonium salts का use mainly aromatic compounds में होता है. ठीक है, तो वो diazonium salts भी एक special class of amines ही हैं. We will also discuss these in detail in this chapter itself. So what I told was Benadryl is important and diazonium salts are there. ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल जो सोर्सेज हैं नेचुरल, सिंथेटिक, बायोलॉजिकल हमारे बॉडी में जो और मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. तो ये हो गए सोर्सेज. नाउ वी विल कम टू द थ्योरी पार्ट ऑफ द अमीन्स. ठीक है, so the simplest definition, the simplest way that you can define amines is they are the derivatives of ammonia. ठीक है, दे मतलब अमोनिया क्या होता है, NH3, राइट. दिस इज अमोनिया. ठीक है, इसमें क्या होता है कि N है एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू दिस N नाइट्रोजन एटम. सो derivatives of ammonia मतलब you have these amines, they are obtained by simply replacing one or two or all of the 3 hydrogen atoms by certain alkyl or the aryl groups. ठीक है, तो कितनी भी हाइड्रोजन, आप यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, आप तीनों को या फिर सिर्फ 2 को या फिर सिर्फ 1 को रिप्लेस कर दीजिए किसी भी अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप से. अल्काइल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मिथाइल ग्रुप और द इथाइल ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, तो इनसे आप रिप्लेस कर सकते हैं कोई. ये तो सिंपल ग्रुप्स हैं. लाइक इन द चैप्टर यू विल सी दैट बहुत सारे कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप्स भी अटैच किए जाते हैं इन द केस ऑफ अमीन्स to give it a complicated structure, है ना. तो हाँ, so how can we define it amines as the derivatives of ammonia. ठीक है, तो रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन एटम को विद सर्टेन काइंड ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप, तो आपको अमीन मिल जाएगा. ठीक है, अब जैसे अमोनिया हो गया. ठीक है, इफ वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस अमोनिया, सपोज करिए हमने सिंपलेस्ट वाला उठाया, दैट इज मिथाइल ग्रुप. एक हाइड्रोजन हटा के हमने मिथाइल लगा दिया, CH3. ठीक है, और यहाँ पे NH2. ठीक है, तो ये एक हमारा अमीन हो गया. देन वी कैन ऑल्सो पुट द अराइल ग्रुप. अगर हम लोग बेंजाइल ग्रुप लगाना चाहें, जैसे फिनाइल ग्रुप C6H5, इट इज ऑल्सो एन अमीन. देन वी कैन रिप्लेस 2 हाइड्रोजन ऑफ द सेम अमोनिया कंपाउंड. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सपोज करिए
you have replaced the two hydrogens with the methyl group. So you will be left with only one hydrogen atom, and there will be two CH3 groups attached with the nitrogen atom. ठीक है, सिमिलरली आप तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं विद सम मिथाइल और इथाइल. दीज ग्रुप्स नीड नॉट बी सेम. जरूरी नहीं है कि सारे ग्रुप्स आपके मिथाइल ही हैं या फिर इथाइल ही है. ठीक है, वो तीनों अलग अलग हो सकते हैं. तो अगर एक हम जनरल स्ट्रक्चर लिखना चाहें अमीन्स का, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज आर आर प्राइम आर डबल प्राइम, जस्ट टू शो कि ये जो तीनों ग्रुप्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. एंड दीज आर दे कैन बी हाइड्रोजन इटसेल्फ. ठीक है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि आप कितने भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ मोस्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अमीन. ठीक है, इसमें आर आपका कुछ भी हो सकता है. सो ये तो हो गया जो स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, नाउ talking about the as you know that the nitrogen atom, it has 5 valence electrons. ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो तीन ग्रुप से अटैच है, देर आर 3 बॉन्ड्स, सो दैट इज वाई नाइट्रोजन एटम इज ट्राइवेलेंट. एंड सो जो भी दो इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग लेफ्ट, सो दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स दे बेसिकली फॉर्म एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 5 है उसमें से जो 3 है वो तो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं. एंड जो लेफ्ट आउट है, जो दे आर द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम. सो when you see this geometry with like 3 bonds and 1 unshared pair of electrons, so you must be knowing that this is the sp3 hybridized. मतलब the nitrogen orbitals जो होती हैं, they are sp3 hybridized and there are 4 orbitals. ठीक है, 3 ऑर्बिटल जो कि ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर रहे हैं. जो 3 बॉन्ड्स है तो 3 ऑर्बिटल्स वो हो गए, और एक ऑर्बिटल जो कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे. ठीक है, सो देयर आर टोटल 4 ऑर्बिटल्स एंड ऑल दीज 4 आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन द पॉइंट्स in the point format. It would be easy. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल what was important कि नाइट्रोजन N is trivalent. ट्राइवेलेंट मतलब 3 बॉन्ड्स हैं प्लस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नाउ अनदर important point is nitrogen orbitals, they are sp3 hybridized. So if anybody asks you about the hybridization involved, then that is sp3. ठीक है, sp3 hybridized, और कितनी होंगी, 4 ऑर्बिटल्स होंगी टोटल. ठीक है, नाउ ईच ये 4 कैसे डिवाइड होगा, ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगी, दे विल ओवरलैप विद द ऑर्बिटल्स ऑफ द हाइड्रोजन और द कार्बन. मतलब जो भी मैंने यहाँ पे आर ग्रुप लिख रखा है वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, और वो कोई एक प्रॉपर एल्काइल और अराइल ग्रुप होगा. ठीक है, सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज दैट आइदर नाइट्रोजन इज बॉन्डिंग विद द हाइड्रोजन एटम और इट इज बॉन्डिंग विद द कार्बन एटम. ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं. So yeah, so the so 3 sp3 hybridized orbitals, they will overlap with the orbitals of either hydrogen or carbon depending upon the formation of amine. And the 4th orbital of a nitrogen is it contains an unshared pair of electrons. ठीक है, तो when you divide it, तो जो 3 होंगे ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं बिकॉज देयर आर 3 बॉन्ड, और जो एक है that contains the unshared pair of electron. हम लोग इसको लोन पेयर भी बोलते हैं. So like in some of the books you can also get this term lone pair of electrons, है ना. So this is an unshared pair of electrons. Now due to this unshared pair, ठीक है, if we talk about the bond angle, तो general अगर हम हाँ, now geometry also I left it. The geometry is pyramidal. ठीक है, टेट्राहेड्रल कब होता है, if सपोज करो अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता एंड यू नो यू हैव 1 more bond.
ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होता है जैसे मीथेन में होता है, तो उसमें क्या होता है, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू द 4 ग्रुप्स देन इट विल बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहाँ पे भी देर आर 4 ऑर्बिटल्स, बट यू ऑल्सो हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, इस वजह से जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल नहीं रह जाएगी। ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन होना और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। So that is why the geometry will be pyramidal, where you have 3 bonds and 1 lone pair of electrons. ठीक है, so now what will be the bond angle in the case of this pyramidal geometry? So because of the presence of this lone pair of electron, or you can call it as the unshared pair of electron, there will be a kind of repulsion. मतलब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बाकी बॉन्ड्स को रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे मतलब एक तरीके से धक्का देंगे। सो दैट इज वाई, तो जो हमारा टेट्राहेड्रल में एक बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 जनरली होता है। ठीक है, 109.5 डिग्रीज होता है। तो बट बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर जब ये रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस केस, ठीक है, मतलब पहली बात तो कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं अमोनिया में, मतलब कौन से एल्काइल और अराइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट द कॉमन, द मोस्ट कॉमन दैट इज ट्राई मिथाइल अमीन सपोज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर दैट जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी लेस देन 109.5। ठीक है, अब ये सेम नहीं होगा सबके लिए, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट अमीन। ठीक है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कितने बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, कितना ज्यादा रिपल्शन हो रहा है लोन पेयर की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यू कैन नॉट स्पेसिफाई द बॉन्ड एंगल। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक ट्राई मिथाइलमीन, मतलब यू हैव 3 मिथाइल ग्रुप्स, दिस दिस अमीन, तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, इट इज 108 डिग्रीज। ठीक है, बाकियों का भी अराउंड इसी के होता है, दैट डिपेंड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, कि क्या क्या स्ट्रक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आई हैव डिस्कस्ड। नाउ दिस विल बी इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर डूइंग द केमिकल रिएक्शंस एंड और द फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी यू नीड टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। So now we will move on to the classification. So amines, they are classified as primary, secondary and tertiary amines, depending upon the number of hydrogen atoms which have been replaced by the alkyl or the aryl group. ठीक है, और in other words you can say कि they are they are classified into the primary, secondary and tertiary amines depending upon the number of carbon atoms which are attached to the nitrogen atom. ठीक है, तो अगर आप कन्वेंशनल अमोनिया में देखें तो देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, so when each one of them will get replaced you will form a different class of amine। ठीक है, तो अगर हम you have this 1 degree भी बोलते हैं शॉर्ट में for this primary, then you have 2 degree amine, or you can call it as secondary, then you have 3 degree, or you can call it as tertiary। ठीक है, सो नाउ सपोज एन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके इट सम ग्रुप हैज बीन अटैच्ड, दैट मींस दिस नाइट्रोजन एटम इज नाउ अटैच्ड टू अ कार्बन एटम। ठीक है, तो व्हेन वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड, इसका मतलब द नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू वन कार्बन एटम एंड बाकी रिमेनिंग रेस्ट ऑफ देम दे आर स्टिल हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस केस में ये जो स्ट्रक्चर होगा ये प्राइमरी अमीन का होगा। ठीक है, तो लाइक द सिंपलेस्ट एग्जांपल, और वी कैन सिंपली राइट इट एज आर। ठीक है, मतलब ये तो हो गया अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट डाउन द फॉर्मूला देन इट विल बी RNH2। ठीक है, आर कुछ भी हो सकता है, और अराइल के केस में यू कैन हैव ArNH2। फाइन, so this is primary amine. Now if 2 hydrogen atoms of the ammonia they are replaced, or you can say that one atom
one hydrogen atom of a primary amine is being replaced by some other group, then you will get a secondary amine. तो उसका जो structure होगा वो कैसा होगा? Then you have one hydrogen, this is nitrogen, एक कार्बन ये है और एक कार्बन एटम ये है, ठीक है? और if you want to write it in terms of the formula, then it will be R NH R prime, ठीक है? This is the case of secondary amine. Now similarly, when all of the three hydrogen atoms are removed, इसका मतलब जो N है वो 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, ठीक है? और बाकी का जो ग्रुप है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? ठीक है, तो you will have R N R prime R double prime. So this is the case of tertiary amine. ठीक है, now one more important thing is कि when suppose all the alkyl or the aryl groups जो भी attached है to this nitrogen atom, they are all same, ठीक है? सारे अगर सेम है तो हम we will call it as a simple amine. सिंपल क्या होगा? सिंपल amine is when all the groups, चाहे वो alkyl हो चाहे वो aryl हो, they are same, then it is known as a simple amine. और mixed amine हम बोलते हैं when सब अलग अलग होते हैं, सॉरी दे आर डिफरेंट, ठीक है? तो सिंपल अमीन और मिक्स्ड अमीन. सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन, ठीक है? दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ अमीन्स जो कि यू विल रिक्वायर, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाइल यू आर डीलिंग विद द प्रिपरेशन, क्योंकि तीनों की प्रिपरेशन के भी कुछ अलग अलग वेज होते हैं. केमिकल रिएक्शंस में तीनों के, क्योंकि तीनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से केमिकल रिएक्शंस में भी तीनों अलग अलग बिहेव करते हैं. Now coming to the next and the most important thing, that is the nomenclature. Nomenclature में as you know that there are two kinds of nomenclature. One is the common name system, जिसमें कोई proper rule नहीं है. कुछ simple compounds को हम ऐसे ही एक common name दे देते हैं without any particular rule, जो ज़्यादा used होते हैं या फिर ज़्यादा जिनका application ज़्यादा होता है या जो simple होते हैं, ठीक है? लेकिन IUPAC nomenclature में एक ये एडवांटेज है कि यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन कम रहता है इन द केस ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बिकॉज यू नो कि इस कंपाउंड के लिए ये रूल रहेगा तो आपको कैसे नेमिंग करनी है वो आपको पता है. So there will be no confusion in the case of IUPAC, and that is why in the exams also IUPAC is asked more often. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द रूल्स. ऐसे नॉर्मल रूल्स डिस्कस कर लेंगे in the form of points, and then we'll move on to the examples. So first is the common name system. ठीक है, तो in the common system an aliphatic amine, मतलब जिसमें कि aryl group नहीं आ रहा है, that is simply named by prefixing the alkyl group to the amine. मतलब अगर हम aliphatic के बारे में बात करें तो we can write it as alkyl amine without any space, ऐसे alkyl amine, ठीक है? as a one word without any space. For example, अगर हम मिथाइल की बात कर रहे हैं तो मिथाइल अमीन हो जाएगा. ये हम प्राइमरी अमीन के बारे में पहले बात कर रहे हैं, ठीक है? मिथाइल अमीन, ठीक है? when one of the hydrogen has been replaced by the methyl group, that is CH3NH2. now in the case of secondary और tertiary amine, अभी भी aliphatic है लेकिन secondary और tertiary amine के केस में when two or more groups they are the same, then we simply write it we put the prefix di or a tri before the name of the alkyl group. मतलब अगर मान लीजिए दो मिथाइल ग्रुप लगेंगे तो we will simply call it as dimethylamine, ठीक है? और we can call it as trimethylamine, ठीक है? तो ये हो गया आपका 1 डिग्री में, ठीक है? 2 डिग्री में we will call it as dialkylamine, and 3 डिग्री में we can call it as trialkylamine, ठीक है? सो दिस वाज फॉर द केस ऑफ कॉमन नेम सिस्टम. इसमें कोई बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है, इस वजह से लाइक व्हेन वी विल डिस्कस यू विल सी कि बहुत अलग अलग तरीके के कॉमन नेम्स, आई मीन यू विल बी finding very different kind of common names in for different kinds of compounds.
ठीक है, बट एज आई टोल्ड यू इन द केस ऑफ IUPAC सिस्टम यू हैव अ लिस्ट ऑफ IUPAC रूल्स, ठीक है, उसमें आपको हमेशा वो रूल्स ही फॉलो करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ नेमिंग। ठीक है, तो इन द केस ऑफ IUPAC सिस्टम में फर्स्ट कमिंग टू द 1 डिग्री, ठीक है, मैं प्राइमरी लिखने की जगह आई एम सिंपली राइटिंग इट एज 1 डिग्री, सो दैट्स अंडरस्टूड। So for the case of primary amines, they are named as alkane amine, ठीक है, और यू कैन आई मीन आई राइट इट डाउन एल्कानमीन्स, ठीक है, तो इसमें क्या है, एल्केन में आपने ई हटा दिया है, ई की जगह पे आप अमाइन सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो, ठीक है, तो एल्केन अमाइन हो गया, ठीक है, आपने सिंपली ई को हटा दिया है एल्केन के। तो जैसे अब आप मीथेन, अगर आप मैं मिथाइल अमाइन हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, तो इफ वी विल राइट द सेम कंपाउंड इन द IUPAC सिस्टम देन दैट विल बी मीथेन अमाइन, ठीक है, तो आई राइट इट डाउन, ठीक है, मीथेन अमाइन। Now, if in the case when more than one amino group is present at the different positions in a parent chain, क्योंकि अभी तो हम like we are naming keeping from the point of view of the nitrogen or from the point of view of the amine, ठीक है, अब when you will get a long chain, suppose a complicated chain जिसमें और भी functional groups हैं और साथ में अमीन भी लगा हुआ है, तो आप कैसे नेमिंग करना है वो we will see in the example। अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहला जो चीज होता है, चाहे कोई भी जितने भी ग्रुप्स लगे हों, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज यू फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसकी एक प्रेफरेंस टेबल होती है विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी टाइम्स। तो उस प्रेफरेंस टेबल के हिसाब से यू फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और उसके हिसाब से यू विल फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, तो फिर लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने के बाद देन यू डू द नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम्स एंड फिर उसके बाद आप प्रॉपर नेमिंग करते हो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वी आर कंसिडरिंग ओनली द अमीन्स, सो दैट इज व्हाई वी विल जनरली डू द एग्जांपल्स जिसमें अमीन्स होते हैं, ठीक है, सो व्हेन हाँ, तो व्हेन मोर देन वन अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट द डिफरेंट लोकेशंस, सपोज इन अ पेरेंट चेन बहुत सारे अमीन्स लगे हुए हैं, देन देयर पोजीशंस भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो हम वहां पे देखेंगे कि कौन से कार्बन एटम पे अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो कार्बन एटम जो होगा वो नंबर्ड होगा, राइट, सो सिंपली देयर पोजीशंस आर स्पेसिफाइड बाय गिविंग द नंबर्स टू दोज कार्बन एटम्स। अब वो नंबरिंग कैसे करनी है दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड, ठीक है, सो एंड देन वी कैन सिंपली ऐड अ प्रीफिक्स, अगर ज्यादा है तो वी कैन ऐड इट एज डाई और ट्राई, अगर सेम सेम है तो, नहीं है तो हम सिंपली नंबरिंग करके नाम लिख देते हैं अल्काइल ग्रुप का, ठीक है, तो सो फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम टेकिंग अ चेन जिसमें कि दो कार्बन एटम्स हैं, इट इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल फॉर स्टार्टिंग, you know you have one NH2 over here and you have one NH2 over here, ठीक है, अब यहाँ पे दो अमीन ग्रुप है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पेरेंट चेन देखनी है जो भी आपकी है, बिकॉज दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, सो यू हैव वन एंड टू कार्बन एटम्स एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग NH2 ग्रुप, ठीक है, तो यू कैन सिंपली कॉल इट एज दिस विल बी इथेन, पहले आप चेन को नेम करोगे इथेन बिकॉज देयर आर टू कार्बन एटम्स, तो यू विल हैव इथेन, और इथेन में 1 और 2 पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू विल राइट इट एज डाई अमीन, ठीक है, सो दिस विल बी इथेन 1,2 डाई अमीन। सिमिलरली अगर चेन लंबी है तो आप प्रॉपर नेमिंग करो अपने रूल्स लगा के IUPAC के, और फिर उसके बाद जिस भी कार्बन एटम पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है यू कैन राइट दैट राइट द स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ दैट कार्बन एटम। तो दिस वाज फॉर द केस ऑफ प्राइमरी अमीन, ठीक है, जब सिर्फ जब NH2 ग्रुप लगा होता है तो आप सिंपली पोजीशन देके आप उसमें अमीन ऐड कर सकते हैं एज अ सफिक्स, ठीक है, और यहाँ पे जो ई रहेगा वो यहाँ पे भी ई रिटेन्ड है और यहाँ पे भी ई रिटेन्ड है, ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा, मीथेनामाइन, इसका जो ई था यहाँ पे, यहाँ वाला ई हटा दिया था, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। Now for the purpose for the naming of a secondary and tertiary amines we use the locant N,
to specify the substituent which is attached to the nitrogen atom. मतलब I'll tell this with the help of an example. Suppose I have a chain. ये हम because this amine is 2 degree है ना, so I'm writing it here as secondary. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी पेरेंट चेन होगी that will be, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, so the parent chain here would be इथेन. ठीक है, और फिर उस इथेन में हम बोलेंगे कि इथेन के फर्स्ट कार्बन एटम पे यहाँ पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है एंड दैट अमीन ग्रुप इज अ सेकेंडरी अमीन. ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, वी विल राइट द नेम एज, क्योंकि इथेन है हमारा प्रिंसिपल चेन इज इथेन. ठीक है, जैसे हमने मीथेनामाइन लिखा था वैसे ही हम यहाँ पे इथेनामाइन लिख देंगे पहले. ठीक है, नाउ वी विल से कि इथेनामाइन मतलब इस पूरी चेन में इथेनामाइन में जो हमारा एन है उसकी उस पे कौन अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप. ठीक है, तो मतलब जो हमारा ये हमारा जो अमीन है वो सेकेंडरी अमीन है एंड दैट इज व्हाई द अदर ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम इज मीथेन, मिथाइल ग्रुप. ठीक है, तो इस वजह से वी सिंपली राइट इट एज एन मिथाइल इथेनामाइन. ठीक है, विदाउट एनी स्पेस, मतलब एन से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एन है, इससे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और ये हमारा इथेनामाइन है, ऐसे ब्रेक कर दिया. ठीक है, सिमिलरली अगर हम टर्शरी अमीन के बारे में बात करें मतलब 3 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे, सपोज आई एम फर्स्ट राइटिंग द फॉर्मूला, वी हैव इथाइल ग्रुप अटैच टू ऑल द 3 नाइट्रोजन एटम. ठीक है, तो हमारा टर्शरी अमीन हो गया. इसमें हम क्या बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए इसमें क्योंकि तीनों सेम है, तीनों ग्रुप जो कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है वो सेम है, दे आर, तो हम किसी भी एक को कंसिडर कर सकते हैं. अदरवाइज अगर डिफरेंट है तो यू विल कंसिडर द प्रिंसिपल चेन. ठीक है, एक कोई बड़ी चेन होगी प्रिंसिपल चेन, उसका हम एल्कानामाइन बना देंगे. ठीक है, तो इस केस में वी विल कीप इट एज इथेनामाइन, जैसा पहले किया था. किसी भी एक चेन को हम प्रिंसिपल चेन कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, और बाकी दोनों को सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, तो जो बाकी के इथाइल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट है. कैसे बताएंगे, एन कॉमा एन डाई इथाइल, मतलब क्योंकि 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं एन कॉमा एन पे. तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे हम किसी भी कार्बन चेन को नंबर करते हैं तो जब हम लिखते हैं 1, अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है तो हम लिख देते हैं 1 मिथाइल. ठीक है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप को मतलब अल्कोहलिक ग्रुप को हमें डिनोट करना होता है, मान लो 3rd पोजीशन पे, वी राइट इट एज 3 हाइड्रोक्सी. है ना, तो जैसा हम लोकेशन देते हैं while writing down while specifying the location of the substituent in a chain, similarly हम यहाँ पे नंबर की जगह पे n लिख रहे हैं टू स्पेसिफाई कि जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इट इज अ क्लास ऑफ अमीन. ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर की जगह पे n लिख रहे हैं. ठीक है, ये चीज हमें समझनी चाहिए, क्यों लिख रहे हैं, जस्ट टू ये दिखाने के लिए लिख रहे हैं, बताने के लिए कि ये अमीन है. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे n कॉमा n डाई इथाइल, क्योंकि 2 n है, मतलब n तो एक ही है बट 2 ग्रुप्स आर बीइंग अटैच्ड, तो n कॉमा n डाई इथाइल इथेनामाइन. ठीक है, तो n जैसे हम लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे n लिख रहे हैं, दैट्स इट. Now these were the simple examples. We have different kind of complicated examples also, जो कि we'll discuss after we are done with the rules. So this was the case for the aliphatic amines. ठीक है, अभी in the aliphatic मतलब when the alkyl group is being attached to the nitrogen atom. ठीक है, now we will discuss the case of aryl amines. ठीक है, IUPAC. So in the case of aryl amines, the NH2 group is directly attached to the benzene ring. ठीक है, मतलब एक N, मतलब the one group which is being attached to the nitrogen atom, it has to be aryl group. aryl मतलब benzyl ring होनी चाहिए, benzene ring. ठीक है, तो I mean the simplest of all will be the 6C6H5 NH2. ठीक है, now you must have heard that the name of this compound is aniline. ठीक है, तो ये कॉमन नेम है, दिस इज द कॉमन नेम, क्योंकि this uh, this does not involve any rules and the regulations that we have discussed till now in the case of IUPAC system. So this is a common name. और लेकिन
क्योंकि बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द अराइलामीन, सो दैट इज व्हाई दिस इज एन एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम आल्सो। ठीक है, तो लाइक इफ यू वांट टू राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम आल्सो ऑफ दिस कंपाउंड, यू कैन सिंपली राइट इट एज एनिलीन। ठीक है, आईयूपीएसी नेम भी यही है। ठीक है, लेकिन अगर बाकी एराइल अमीन्स के बारे में बात करें, सो द सफिक्स ई ऑफ दैट अरीन इज सिंपली रिप्लेस्ड बाय अमीन। जैसे हम लोग एल्केन में क्या कर रहे थे, एल्केन का जो ई था लास्ट वाला, उसको रिप्लेस कर दे रहे थे अमीन से, तो वो बन जा रहा था एल्केनमीन, जैसे मीथेनमाइन, इथेनमाइन। इस तरीके से यहाँ पे भी इन द केस ऑफ अरीन वी विल रिप्लेस वन ई एंड पुट अमीन ओवर देयर। जैसे कि अगर हम इस सिस्टम के हिसाब से इसको नेम करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन का ई हटा दो। ठीक है, ई हटा के आपने क्या कर दिया, अमीन, बेंजीन अमीन। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी रूल्स के हिसाब से उसका आईयूपीएसी नेम है। इवन एज आई टोल्ड यू एनिलीन, इट इज ऑल्सो आईयूपीएसी नेम, एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम, सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स that that is there. Now we are going to discuss several examples. So like I'll write down the I'll first write down the structure and then I'll discuss the common name as well as the IUPAC name. तो आप compare कर पाओगे, ठीक है, कि क्या क्या difference है, because see the rules they are, I mean the rules are okay, but sometimes you might get confused कि एक जैसा ही लग रहा है सब कुछ। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में ऑल्सो आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि द नेमिंग ऑफ अमीन्स इज नॉट दैट इजी एज कम्पेयर्ड टू द अल्कोहल्स एंड द एल्डिहाइड्स। ठीक है, उनमें फिर भी बहुत आसान होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, एंड दैट इज व्हाई आई डिस्कस बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स। तो द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इज जैसे मीथेनामाइन और मिथाइलमाइन, तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द रूल्स, सो आई एम स्किपिंग दैट। यू हैव CH3 CH2 NH2। ठीक है, तो इसका ओके, आई विल राइट डाउन द कॉमन नेम फर्स्ट एंड देन आई विल राइट डाउन द IUPAC। ठीक है, तो कॉमन नेम में एज द इट वाज अल्काइल अमीन। ठीक है, द कॉमन नेम, द जनरल कॉमन नेम वाज अल्काइल अमीन। ठीक है, तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो दैट विल बी इथाइल अमीन। ठीक है, विदाउट अ स्पेस। ये दोनों एक ही नेम है पूरा, उसमें कोई स्पेस नहीं है बीच में। इन द केस ऑफ IUPAC इट वाज एल्कानामाइन। ठीक है, तो जैसे मिथेनामाइन था वैसे यहाँ पे इथेनामाइन हो जाएगा। जो भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ये प्राइमरी अमीन है, राइट, तो इसका सबसे सिंपल नेमिंग होता है इथेनामाइन। सिमिलरली when we extend this to more number of carbon atoms, there are 3 carbon atoms, 3 मतलब प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो N से चेन लगी हुई है दैट इज नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट चेन है, इस वजह से हम इसे लिखेंगे N प्रोपाइलमीन। ठीक है, क्योंकि एज यू नो कि देर आर डिफरेंट अदर आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन, लाइक N प्रोपेन होता है, आइसोप्रोपेन होता है, जो ब्यूटेन में होता है, ब्यूटेन में भी होता है, आइसोब्यूटेन होता है, नियोब्यूटेन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉर दीज काइंड्स ऑफ आइसोमर्स यहाँ पे हम N प्रोपाइल अमीन लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेनामाइन। नाउ आई एम राइटिंग 1 ओवर हियर बिकॉज हम इस पूरी चेन को एज अ सिंगल चेन कंसीडर कर रहे हैं, पेरेंट चेन, और जब हम उसका नंबरिंग करेंगे तो वी विल नंबर दिस कार्बन एटम एज 1 2 and 3। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन एटम पे अमीन ग्रुप लगा हुआ है एंड दैट इज व्हाई हम यहाँ पे 1 स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द आइसोमर, आइसोमर्स के केस में आप कैसे नेमिंग करोगे, तो हियर वी हैव द आइसोप्रोपेन NH2। ठीक है, यहाँ पे भी द चेन विच इज अटैच्ड टू दिस नाइट्रोजन एटम इट इज प्रोपेन ओनली। ठीक है, बट नॉर्मल प्रोपेन नहीं है, ये है आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन मतलब जब व्हेन सम ऑफ द ग्रुप और सम ऑफ द सबस्टिट्यूएंट इज अटैच्ड टू द मिडिल कार्बन इन द प्रोपेन चेन। ठीक है, तो वी कॉल इट एज आइसोप्रोपेन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने N प्रोपाइल अमीन किया था, नाउ इट विल बी आइसोप्रोपाइल अमीन। ठीक है, और सिमिलरली एज आई टोल्ड यू कि जब हम नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग में सेकेंड एग्जाम्पल में नंबरिंग में जो NH2 ग्रुप था वो पहले कार्बन से अटैच था। इस वाले एग्जाम्पल में
द NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकंड कार्बन एटम। ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पे 2 आ जाएगा लोकेशन में, प्रोपेन टू अमीन। ठीक है, तो ये तो था प्राइमरी अमीन। ठीक है, ऑल दीज दे वर प्राइमरी। Now, there are several, like there are very different kinds of secondary and tertiary amines, also complicated ones. So these were some common examples. These complicated examples we will discuss it in the next lecture. And also I'll discuss certain exercises to specify whether amine is a primary amine or a secondary amine or a tertiary amine. कुछ ऐसे example जिसमें कि लोग confuse हो जाते हैं generally. We will discuss them. So this was all for today. Thank you.